Hello students, welcome to this video lecture number 5 of a magnetic effect of the current. In this video lecture, we are discussing about the Lorentz force, Fleming's left hand rule, magnetic force on the moving charge in a uniform electric and magnetic field, force on the current carrying conductor, a uniform magnetic field, force between the two infinitely long parallel current carrying conductors, and definition of a ampere, and representation of the field due to the current. In the previous video lecture, we discussed about the Biot-Savart law and application of the Biot-Savart law and Ampere circuitous law, and two application of the Ampere circuitous law are the magnetic field due to the solenoid and toroid. And in the next video lecture, we discuss about the numericals. In two video lectures are there for the numericals on the Biot-Savart law and numericals on the application of a Ampere circuitous law. So all these are the 4 video lectures are very important, and this is the 5th video lecture of the magnetic effect of the current. Let us start this unit with this. What is the Lorentz magnetic force? When this current carrying conductor, a charge, when charge particle is placed in a मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज पार्टिकल चार्ज q placed in a magnetic field, it experiences the force. That force F is equal to, this is a force equal to q into v cross b, q v cross b, and where v is the, this vector v is a velocity of a charge particle. Velocity of a charge particle, and B is a magnetic field. Then this is a cross product of a V and B. So V, this F equal to, then F is equal to Q V B sine of a theta. Yeah, this is VB. This is a Q B V sine theta. This is the force experienced by the charged particle placed in a magnetic field. And when it will be the this is the force. This force is known as a Lorentz force. Or this force will be the maximum when theta equal to 90 degree. Means the charged particle entered in the magnetic field in the direction perpendicular to the direction of the magnetic field. Means V, vector V, velocity is a perpendicular to magnetic field B. In this case, the force experience equal to BQV, and it is a this force is a maximum. This force is a maximum when charged particle enter in the direction of the magnetic, when theta equal to 0, charged particle enter in the direction of magnetic field, then the force experienced by the charged particle equal to 0. One more third case, when charged particle is a V is equal to, this is the rest, charged particle is a rest at in a magnetic field. So then also F, this force experience equal to 0 by substituting these values and this A. So this is all about the force experienced by the charged particle in a magnetic field, and this force is known as a Lorentz force. This is a very important article because number of numericals asked, a condition asked in the 1 marks or 2 marks question in the board examination. So please take care of about this unit. It is very important. So another article, when charged particle
when this charged particle is placed in a when this charged particle is placed in a इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, व्हेन दिस इज ए चार्ज क्यू प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा तो एफ इज इक्वल टू, हम जानते हैं इसका क्यू इंटू ई होता है। यहाँ वेलोसिटी पार्टिकल नहीं, मतलब अगर यहाँ रेस्ट पार्टिकल है, तो भी इट एक्सपीरियंस द फोर्स इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ए क्यू इंटू ई when v equal to 0 at rest, even though it experiences the force, and when electric E and B both are perpendicular, दोनों फील्ड अगर परपेंडिकुलर है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल फोर्स on charge q, this is F is equal to, this is F due to the electric plus F due to the magnetic, this is total force, this force equal to electric कितना है q into E, और magnetic कितना है, magnetic this is a directly I will write it as q v cross, this is the v, and this total force, this known as a Lorentz force in a magnetic and electric, this also is known as total, this known as a Lorentz force in electric and magnetic field. So this is the important article, be careful about it, and we'll discuss the next unit, next article, Lorentz magnetic force. The Lorentz magnetic force. So current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a force, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स एक्सपीरियंस, जो हमने पहले डिस्कस किया ये इसी के फॉर्म में रखा है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, and charge q is placed in the same, and the charge having a velocity v, and carrying the current I, that can making the angle theta with the magnetic field, and then it will experience the force, this perpendicular to the plane containing a v and b, this is perpendicular to the plane containing v and b, that experience the force. The Fm is equal to QVB, हमने अभी डिस्कस किया, U sin theta, when it is a maximum, when it is a minimum, this all about the, when 180 या थीटा होगा तो क्या होगा, पैरेलल जाएगा, एंटी पैरेलल जाएगा, 90 होगा तो क्या होगा, when V is equal to 0 charge particle at rest, all the cases we discussed in a previous slide. Now this is the force. What about the direction of the force? The direction of the force, the charged particle in a magnetic field is determined by using the Fleming's left hand rule. So what is the Fleming's left hand rule? Magnitude हो गया, this magnitude, this F in a magnetic field, Fm equal to the charge Q V cross B. ये हो गया magnitude. This is the magnitude of क्या force. And what about the direction? Direction is a direction of that force is determined by using the Fleming's left hand rule. When 3 fingers of the left hand, कौन सा finger, 4 finger, in the direction of the magnetic field B, and center finger is the direction of current, and then thumb in the direction of a
force. So when three fingers of the left hand, forefinger, center finger and thumb, stretch mutually perpendicular to each other, तीनों कैसे हैं? Mutually perpendicular to each other. This forefinger pointing toward the magnetic field, center finger is pointing toward the direction of the current, then it is a force experience in the direction of the thumb. In the direction of thumb, this known as the Fleming's left hand rule. We also discuss in the learn it about it in the class 10th in the working principle of a motor based on the Fleming's left hand rule, electric motor. Then what is the right hand palm rule? Right hand palm rule, when this palm of the right hand is a stretch the finger, this is a the center finger, stretch finger of the right hand of the palm, then current direction in the center finger, thumb is the direction of the magnetic field, and then force experienced by the current carrying conductor is a perpendicular to the palm. Means this will be the in this way. This is the center finger. अगर ये center finger है तो this is the direction of a current, and this is the thumb in the direction of stretch thumb, the direction of the magnetic field, and these are the remaining fingers I am drawing here. ये the remaining fingers तीन हो गए हैं और ये फोर्थ और ये, और this is the palm, then direction of this is the force is a perpendicular to this direction. किस में आएगा? This force is a perpendicular to the open palm. This known as a right hand palm rule to find out the direction of the force experience of a conductor. चलिए इसको देखते हैं. What is the Fleming's left hand rule? It is pictorially it is indicated the force, this when forefinger in the direction of magnetic field, current in the direction of the center finger, then thumb is a point in the direction of the force experience. और to remember of this thing, इसको अगर याद रखना है तो यहाँ एक लिखा EMF इन्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाना है. एंटी क्लॉकवाइज, इन्हें एंटी क्लॉकवाइज, तो इन्हें ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, और उसके बाद कौन आता है? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद फोर्स. इन्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से लेगा, एंटी क्लॉकवाइज. देन वी कैन रिमेंबर दिस इज व्हाट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इसे बिल्कुल आसान है. तो यहाँ टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक, टोटल फोर्स इज इन ए मैग्नेटिक, और दिस इज द की इज टेकन कॉमन E V क्रॉस, this is a B. If this is the meaning of this, let us go to the next. The motion of the charged particle in uniform magnetic field. This is in a uniform magnetic field, the charged particle in a, this is a F equal to, this F equal to हमने लिखा है इसको B is equal to Q V cross क्या आता है B, और this is the written as a in this way Vm Fm, this is equal to V Q V B sin of a theta. तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये दिस इज ए क्रॉस फील्ड है. क्रॉस फील्ड में जो मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द plane of the screen or plane of the paper. This magnetic field is perpendicular to the plane of the field. This cross indicates the direction of a, this is a uniform B perpendicular to the plane, or we can indicate this is along the Z direction. किस direction है? Z direction. And in a Y direction we indicate the current. We indicate the current in a Y direction. Then suppose this is the charged particle
makes the angle theta with this magnetic field. इसके साथ थीटा है, this is V, this is the V, make the theta with this magnetic field and it is moving. तो फर्स्ट केस में देखेंगे when charge particle moves in the parallel to the magnetic field, parallel to magnetic field is theta equal to 0 और theta equal to 180 डिग्री. तो ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 केसेस पूछ सकते हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे. सो दिस अगर पैरेलल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में पैरेलल जाता है तो थीटा क्या आएगा 0 और 180 डिग्री. तो बोथ द केसेस एफ एम इक्वल टू क्या आएगा 0, पैरेलल और एंटी पैरेलल. तो व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा इक्वल टू कितना आएगा 90. सो दिस दिस इज द मैक्सिमम रहेगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल क्यू हुई बी. दिस इज द मैक्सिमम. 2 केस हो गए. देन थर्ड केस, when charge particle initially it makes an angle theta. अगर ये जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फिर मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो when this is charged particle, this is the uniform magnetic field perpendicular to the plane and inward direction, or this is denoted by z axis. This is the B along the z axis. This is a z axis in a magnetic field B, z axis. Okay, and along the x axis, the y axis, this is a current, and this velocity of a vector, velocity of a charged particle, it is a makes an angle, suppose this makes an angle theta, this is the V, or it makes the angle with the magnetic field. This is the direction of a magnetic field. यह इसके साथ theta angle बनाता है. So this theta is a resolved into 2 component. 2 component में resolve करेंगे. तो along the angle होता है v cos theta, और v cos theta कैसा है? The v cos theta, it is a parallel to the component. Parallel component to किसके लिए? Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड B. और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस विल बी ए V परपेंडिकुलर. सो V परपेंडिकुलर टू दी V परपेंडिकुलर इज ए V sin थीटा परपेंडिकुलर टू किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड. सो दीज 2 कंपोनेंट्स हाउ दे एक्ट इन दिस रोटेशन. So in a earlier one thing is in an earlier video I want to explain, when this is a charge particle in a magnetic field. यहाँ एक थोड़ा सा एक बात करेंगे. This is the uniform magnetic field, uniformly suppose it is represented in this way, और यहाँ इसमें ये चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर जा रहा है. ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द पेपर. और ये मैग्नेटिक फील्ड को ये चार्ज पार्टिकल कैसा है? इट इज ए परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट टू द सर्कल. दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट. हर टाइम द वेलोसिटी कंपोनेंट क्या रहेगा? v परपेंडिकुलर. सो इट विल मूव इन ए सर्कल. इट विल बी मूव इन ए सर्कल. तो सर्कल में मूव करता है तो द रेडियस क्या आएगा? सो द फोर्स एक्सपीरियंस इट इज अ मैक्सिमम एंड मूविंग इन ए सर्कल, क्योंकि हर टाइम फोर्स क्या रहेगा? Perpendicular. This is the force experience of the charged particle in a perpendicular direction. So this is a it will experience the force maximum QVB equal to mv square by r. ये क्या है? Centripetal force. This is the centripetal force. So this is the one v will get cancelled. R is equal to mv divided by qv. इस तरीके से आएगा. This is the radius, and then time period of the revolution of this equal to time period of a revolution this equal to जैसे कैसे घूम रहा है ये? सर्कुलर. तो डिस्टेंस कितना गया? 2 पाई आर, और वेलोसिटी कितना है? v. तो 2 पाई डिवाइड बाई v यहाँ रखा, और r का वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो यहाँ v डिवाइड बाई q डिवाइड बाई b. दिस v गेट कैंसिल. तो t इक्वल टू देन यहाँ आएगा दिस t इक्वल टू, you can write here,
दिस टी इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका टी मतलब टाइम पीरियड ऑफ ए रिवॉल्यूशन। सो टाइम पीरियड ऑफ ए रिवॉल्यूशन टी इक्वल टू कितना आएगा, देखो दिस इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी is a reciprocal of a time period, so this is like qb divided by 2 pi m. This is the when charged particle moves in a perpendicular to the direction. तो नेक्स्ट ये बात भी ध्यान रखना, इसी को अप्लाई नेक्स्ट इसमें करना, इसलिए मैंने ये बैक करके समझा। अब यहाँ दिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है तो ये कैसा घूमेगा, इट विल मूव इन ए सर्कल। कैसे घूमेगा, इन ए सर्कल। और विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल बी मूव, तो दिस इज सर्कल में मूव करेगा, दिस इज बी क्यू वी डिवाइड इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स। वन वी गेट कैंसिल, जैसे पहले बताया, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई आर। वन वी गेट कैंसिल एम वी, और ये कौन सा कंपोनेंट है, वी साइन ऑफ ए थीटा। ओके, देन टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड कैसे घूम रहा है, 2 पाई आर डिवाइड बाई क्या है, वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये कितना आएगा, 2 पाई दिस इज अ वी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू, ओके यहाँ इनटू आर का वैल्यू रख रहा हूँ मैं, एम वी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई क्या आएगा, आर। दिस इज नॉट ए आर, this is not R, this is the sorry, this is the BQ, और यहाँ ये BQ, तो एम वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो T इक्वल टू क्या बचता है, T इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइड बाई BQ। अब यहाँ देखो, मास है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी, और वी साइन थीटा टाइम पीरियड, एंड फ्रीक्वेंसी also this BQ डिवाइड बाई क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ इसे 2 पाई एम। तो यहाँ देखेंगे तो इसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इट इज अ कांस्टेंट, ऑल दिस टर्म्स आर कांस्टेंट, सो टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन इज ए कांस्टेंट, constantly it will move in a circle with this component v sin theta, it is very important. Then v parallel component क्या है, parallel component is a along the direction of किसका, b, in the direction of b। तो ये जब डायरेक्शन ऑफ द बी रहेगा तो ये क्या करेगा, ये इट विल बी स्ट्रेच द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर यहाँ सर्कल आता है तो ये कैसा आएगा, दिस विल मूव इन द स्पाइरल, और दिस इज मूव इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिकल फॉर्म में गोल गोल घूमेगा और ऐसा आगे जाएगा। तो पार्टिकल विल बी, दिस कंपोनेंट इज ए मूव। सो दिस देन इसमें एक टर्म आता है पिच, पिच मतलब टाइम, दिस पिच इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये यहाँ से मैंने क्या किया था, दिस पैरेलल कंपोनेंट ऑफ दिस मूव, दिस नोन एज पिच। अगर इसको देखेंगे तो पिच का मतलब होता है this pitch equal to distance moved in a one rotation, तो वो एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस मूव किया, तो डिस्टेंस मूव इन ए वन रोटेशन दिस इक्वल टू पिच, और डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस वेलोसिटी ड्यू टू द पैरेलल वेक्टर इनटू द टाइम t। तो वेलोसिटी कितना है, जैसे v cos थीटा इनटू दिस इक्वल टू टाइम का दिखा था, t इज इक्वल टू कितना आया था, bqv इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये इसके लिए वन वी गेट कैंसिल, तो r इक्वल टू आया था एम वी डिवाइड बाई बी क्यू, और वेलोसिटी कितना हमें क्या निकालना है,
टाइम निकालना है। सो टाइम इक्वल टू कैसा घूम रहा था, सर्कुलर, कितना डिस्टेंस गया 2 पाई सरकमफेरेंस, और वेलोसिटी कितना था v। तो यहाँ हमने अगर 2 पाई डिवाइड बाई v, r का वैल्यू यहाँ से रखा एम वी डिवाइड बाई बी क्यू, तो v भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा कितना टाइम का 2 पाई एम डिवाइड बाई दिस इज बी क्यू, इस तरीके से। तो पिच इक्वल टू क्या हो गया, पिच मतलब द डिस्टेंस मूव द चार्ज पार्टिकल along the z axis or along the direction of the magnetic field in a one rotation, for the one rotation, this equal to pitch equal to 2 pi m v cos theta divided by क्या आएगा dq. So this is when charged particle move in a circle and along this way in a spiral, so this will be form the helical, मतलब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या करेगा, इसको गोल घुमाएगा, और ये जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, उसको इट इज स्ट्रेच अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से कंप्लीट सर्कल बना चाहिए, ये क्या होगा, आगे आगे चला जाएगा और इट फॉर्म द हेलिक्स, spring like structure. So this is the theory of a when particle entered in the magnetic field making some arbitrary angle with the magnetic field B. So this is the theory of this is very important. This also may ask for the 3 marks के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत ही important theory है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। The force on the current carrying conductor in a uniform magnetic field. अगर this force on the current carrying conductor in a magnetic field, when force on the current carrying conductor in a uniform magnetic field, अगर ये कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो थियरी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो एक जस्ट वन स्लाइड पीछे करते हैं। हाँ, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर और हैविंग द दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, दिस इज एरिया of cross section and carrying the current, is carrying the current in this direction. This is the current direction of the current I. So this electrons are drifting in a opposite to the direction of the current direction हमेशा क्या पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या रहता है, अपोजिट का डायरेक्शन ऑफ करंट, इट मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द वायर। तो ये वी और आई क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। तो ये अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कंडक्टर में जो चार्ज कैरी होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन इज इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस, हर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ई, दिस इज वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी। और हर इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर में जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ देखा हमने। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है का कंडक्टर में नहीं है, इट देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। सो दिस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे निकालेंगे, तो n इंटू दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस नॉट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो कितना है n डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वॉल्यूम कैसे है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटू एल। जनरली ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंडक्टर होते हैं, हमने सिलेंड्रिकल के लिए, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स है। सो टोटल फोर्स experienced by all electrons in the conductor। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो दिस F इक्वल टू n इंटू
दिस इज Fe, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द फोर्स, दिस इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ n कितना है, n का वैल्यू, कैपिटल N का वैल्यू स्मॉल n इंटू Al, और Fe कितना है माइनस E इंटू जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd क्रॉस d। यहाँ देखेंगे तो अभी I, करंट I and this Vd, they are opposite direction, so this length element, अगर यहाँ मैं ये लेंथ एलिमेंट ले लूँ, यहाँ लेंथ एलिमेंट लेंगे, लेंथ एलिमेंट अगर मैं L ले लूँगा, दिस इज पार्ट ऑफ द कंडक्टर, दिस इज लेंथ एलिमेंट L इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, दिस इक्वल टू, अगर ये यहाँ लेंथ एलिमेंट Vd दिस इज माइनस, तो लेकिन लेंथ एलिमेंट जो है करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, Vd अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम ऐसा L इंटू Vd प्लस भी लिख सकते हैं, क्योंकि करंट एंड I current and Vd in opposite direction, ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख रखा हूँ, जैसे फोर्स एक्सपीरियंस F इज इक्वल टू क्या है, N A L Vd, और ये अंदर लेंथ एलिमेंट L क्रॉस दिस इज ए B, दिस लेंथ एलिमेंट इज वेक्टर, दिस लेंथ वेक्टर, तो ये L क्रॉस B आएगा, यहाँ Vd को मैंने बाहर लिया, तो दिस टर्म इक्वल टू I N A L इंटू Vd, तो करंट एंड दिस इज द रिलेशन ऑफ द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डिस्कस इन ए करंट इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर्टिकल में देखा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, किसका रिलेशन बिटवीन करंट I एंड Vd और इसका रिलेशन है। तो ये अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू ये आएगा, दिस फोर्स इक्वल टू इसके लिए I L क्रॉस क्या आएगा B, तो दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए I L B साइन ऑफ ए थीटा, दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर व्हेन प्लेस इन ए मैग्नेटिक, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दिस इज इम्पोर्टेंट आर्टिकल, तो दिस में आस्क फॉर दी कितना 3 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स इन ए CBSE एग्जाम पूछ सकता है। तो ऐसा ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज पार्टिकल है, और वो कैसा है करंट कैरी कंडक्टर कैरी करते हैं, इसका मतलब वो मोशन में है, वेलोसिटी नॉट जीरो, ये रेस्ट नहीं है, मोशन में है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना करेगा, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन से, इतना इलेक्ट्रॉन से, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस करके, टोटल फोर्स कितना आएगा, फिर फोर्स इक्वल टू इतना वैल्यू आएगा टोटल फोर्स। यहाँ Vd और I का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसीलिए इसको प्लस लिया मैंने यहाँ, और करंट है दिस अपोजिट डायरेक्शन, टोटल फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो I इज इक्वल टू ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट का रिलेशन, ये वैल्यू I रखा इसे, I इज इक्वल एल बी साइन थीटा, सो F इज इक्वल टू I एल बी साइन थीटा, दिस इज द टोटल फोर्स। अब यहाँ देखो करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसी डायरेक्शन को यहाँ रखा, वो मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा, अब इसको क्या किया, यहाँ एक करंट कैरिंग कंडक्टर दिस स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ DL लिया और इसके एक्सप्लेन किया, तो भी ऐसा किया तो भी चलेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ईच इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, हर इलेक्ट्रॉन कितना इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे वहाँ क्या यहाँ DL एलिमेंट लिया हमने, लेंथ L लिया था, वहाँ यहाँ DL लिया, ओके, सो DF इज a small force is experienced by the number of electrons present in the DL element, so this is the total, or net force is find out by using the integrating this DL element, DL integration of DL का क्या आएगा L, so the F is equal to LB sin theta। अब इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन के लिए
डायरेक्शन, फॉर द डायरेक्शन इट इज ए फ्लेमिंग्स क्या करना है, राइट लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है फ्लेमिंग इन लेफ्ट हैंड? दिस 3 फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, 4 फिंगर, सेंटर finger and thumb hold mutually perpendicular to each other, 4 in the direction of the magnetic field, center finger in the direction of current, then the conductor will be experience the force in the direction of thumb. This known as a Fleming's left hand thumb rule. तो ये यहाँ यूज करते हैं। अब यहाँ क्या है, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगर दो कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर AB and this is a conductor AB and conductor is a CD. दो कंडक्टर हैं, they are carrying the current I1 and this carrying the current I2. They are not placed in a magnetic field. This not placed. कहाँ नहीं रखे? Not placed in a magnetic field. Only this दो current carrying conductor, they carrying the current I1 and I2 and they are parallel to each other, separated by distance is a r. दोनों का separation distance कितना है, r. अब क्या होता है इसमें, कितना क्या फोर्स है, ये दोनों में फोर्स एक्सर्ट करेगा, किसकी वजह से? तो फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर है AB, ये कितना करंट कैरी कर रहा है, I1, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एट दिस पॉइंट, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, ये किस डायरेक्शन में, करंट कैरिंग कंडक्टर I1 at a distance r from the conductor, first conductor. This magnetic field मैं लिखूंगा यहाँ, this is the B1 is a magnetic field produced. इसका हमने बायट-शॉर्ट लॉ का एप्लीकेशन से इसका एप्लीकेशन पढ़ा था, तो μ0 इंटू क्या आएगा, करंट कितना कैरी कर रहा है I1 और डिस्टेंस कितना है 2 पाई, दिस इज द r डिस्टेंस, दिस इज द magnetic field produced due to, किसके वजह से, ड्यू टू ए कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर, AB का वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये देखा हमने। तो AB कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ देखा, तो ये AB इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेगा। अब इसका डायरेक्शन देखेंगे तो कैसा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैं यहाँ, तो अकॉर्डिंग द राइट हैंड थंब रूल, thumb in the direction of current, then this 4 finger, this a pen is in the direction of the current, then 4 finger which is a curve around the conductor, it is the direction of magnetic field. अगर ये करंट अपवर्ड जा रहा है, इसका यहाँ देखेंगे ये करंट अपवर्ड जा रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये एट दिस पॉइंट, ये क्या करेगा, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड क्या आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड डायरेक्शन। और इनवर्ड डायरेक्शन का करंट कैसे दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन एंड इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो दिस B1 A परपेंडिकुलर टू प्लेन और इनवर्ड, दिस इज द इनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो पहले ने प्रोड्यूस किया B1, उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया गया, CD रखा, तो CD क्या करेगा, ये CD विल एक्सपीरियंस ये क्या करेगा, फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना, तो हम इसको लिखेंगे F2 इक्वल टू IL भी साइन थीटा, ऐसा हमने लिखा था। तो ये I कितना करंट पास कर रहा है, I2, और लेंथ कितना है, L है, और B कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, साइन ऑफ कितना है, तो 90 डिग्री है, क्योंकि इनवर्ड है, कंडक्टर स्ट्रेट है, इसका मतलब डायरेक्शन इज है 90 डिग्री। तो F2 एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द CD इक्वल टू B1 का वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, इसका μ0 I1 डिवाइड बाई क्या लिखा है 2 पाई r B1 का, और ये I2 एज इट इज इंटू लेंथ L, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस, और दिस इज द फोर्स
एक्सपीरियंस बाय कौन सा कंडक्टर CD ड्यू टू B1 मैग्नेटिक फील्ड के वजह इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर इसको हम लिखेंगे F2 डिवाइड बाई L इक्वल टू μ0 I1 I2 डिवाइड बाई कितना आएगा 2 पाई r। और दिस फोर्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ डायरेक्ट, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसका कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा। सो दिस अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड दिस लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने बताया परपेंडिकुलर द प्लेन एंड इनवर्ड है, और करंट डायरेक्शन कितना है, कहाँ है, अपवर्ड, ये अपवर्ड करंट जा रहा है, ये ऐसा अंदर जा रहा है, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। मैं यहाँ दिखाता हूँ इसका, देन फोर्स का डायरेक्शन कितना है, ये दिस इज F2, इट इज टूवर्ड्स AB, द फोर्स टूवर्ड्स कहाँ आएगा, AB कंडक्टर। तो मैंने यहाँ देखा दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इन द सिमिलरली CD कंडक्टर कैरिंग क्या कर रहा है, कैरिंग करंट, कैरिंग ए करंट I2 and produces the carrying the current I2 produces a magnetic field। और कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, B2। तो B2 कितना है, तो दिस इज ए B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस कंडक्टर। सो B2 इक्वल टू, यहाँ लिखो, सो B2 इक्वल टू कितना आएगा, B2 इज इक्वल टू μ0, उसका करंट कितना है, I2 कैरी कर रहा है, और ये डिस्टेंस कितना, R डिस्टेंस पर। तो मैंने दूसरा पॉइंटर यूज करेंगे कलर का, तो ये R डिस्टेंस पे इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और ये I2 की वजह से एट दिस पॉइंट दिस इज द क्या आएगा, ये B2, और ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज द R डिस्टेंस, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये सेकंड कंडक्टर था। और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ओके इरेजर यूज करना है, क्योंकि मैंने वो ड्रॉ गलत किया था। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना रहेगा, तो ये यहाँ कौन सा कंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, ये सेकंड कंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है CD, इसलिए ये सर्कल यहाँ से बनेगा, और इस पॉइंट पे ये रहेगा परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। लेकिन ये जो फील्ड है वो इनवर्ड है, तो ये जो फील्ड रहेगा क्या रहेगा, आउटवर्ड, इसलिए इसको क्या किया, डॉट से दिखाया, दिस नॉट ए डायरेक्शन, इट विल बी इन ए आउटवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज बोथ द फील्ड्स आर नॉट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, नॉट बोथ नॉट एग्जिस्ट। तो एक नॉर्थ रहेगा, दूसरा साउथ रहेगा, एक इनवर्ड है तो दूसरा आउटवर्ड रहेगा। और दिस आल्सो एक्सपीरियंस द फोर्स, कौन सा, ये कंडक्टर, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड CD ने प्रोड्यूस किया, उस मैग्नेटिक फील्ड में AB रखा, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा था, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय AB किसकी वजह से, ड्यू टू B2 मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से ये फोर्स करेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स F1 डिवाइड बाई L इक्वल टू μ0 I1 I2 डिवाइड बाई क्या आएगा 2 पाई R। सो दोनों, पहला जो फोर्स एक्सपीरियंस किया था और दूसरा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया था, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, बोथ हैविंग ए एक्सपीरियंस। और अभी इसका डायरेक्शन देखेंगे, इसका डायरेक्शन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जैसे करंट इन है अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा, मेरे तरफ,
तो ये फोर्स, अगर ये करंट का डायरेक्शन है, अगर मेरे साथ करता हूँ, और ये क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरे तरफ है आउटवर्ड डायरेक्शन, और करंट का डायरेक्शन कौन सा है, अपवर्ड, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, दिस इज F1। तो F2 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में, तो ये इट विल बी डायरेक्शन इज ए towards CD. So this is 2 F1 and F2 equal and कैसा है, अपोजिट। क्या होगा, दे विल बी अट्रैक्ट विथ ईच अदर, क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया थियरी, पहला कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पर प्रोड्यूस करेगा, दूसरा उसने उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अगर नहीं समझ में आए तो पॉज करो, रिवाइंड करो और इसको फिर से देखो, ये भी 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है फॉर द बोथ द पर्पज, न्यूमेरिकल एज वेल एज थियरी के लिए। तो चलो आगे देखते हैं, आगे कभी है। तो ये the force experience, this F divided by L equal to mu0 I1 I2 divided by क्या पढ़ा 2 pi r। अब यहाँ